India, the Constitution came into effect on 26th of January 1950. The Constitution of India is the backbone of Indian legal system. It describes the building blocks of political structure and the duties of the government. It gives every Indian their fundamental as a human being. With the Constitution of India coming into effect at long last, it has an immense significance. It signified the complete uprooting of British dominance. It signified its country where the people governs by its people. It declares equality for all, which was non-existence in the British hierarchy. Since it was such a great achievement, a huge milestone has been reached. On 125th birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar, on 19th of November 2015, the Prime Minister Mr. Narendra Modi declared 26th of November as the Constitution Day of India. Since Dr. Bhimrao Ambedkar had played a significant role in its existence. On this auspicious day, we have a very eminent guest with us today who has his deep roots in the field of constitutional law of India. I would like to welcome our keynote speaker, sir, Dr. Raj Kumar, sir. Welcome. We welcome you, sir. Thank you. Furthermore, Dr. Raj Kumar, sir, is presently working as an associate professor in the Department of Law, Meerut College, Meerut. He has received all his higher education, including his LLM and his PhD in law from Banaras Hindu University, Varanasi. Sir has also published around 28 papers in various national and international journals. He has also presented papers, around 54 papers in national seminars also. Sir has also authored two books that is entitled as Corrupt Practices in Indian Electoral System, a Socio-Legal Analysis, and Role of Judiciary in Protection of Human Rights of Women. Sir has also delivered lectures in various institutions like Judicial Training Academy, Nainital, and CPWD Training Institute. His field of specialization is constitutional law, administrative law, and human rights. Sir, we are very thankful for you that you took your precious time to guide us, and today is a very good day to help us, sir. Now I would request you, sir, to kindly enlighten us with your words, sir. Thank you, sir. Up to you, sir. Uh, Thank you, Akshay ji, Thank you. for a nice introduction. We are here to celebrate the Constitution Day. Really, it's a very pious day. And first of all, I would like to congratulate to all of you for the Constitution Day. By virtue of Constitution, we are getting a lot of rights as well as duties too. And by virtue of those rights, we are here enjoying as a human being in India, particularly. So, today, I would like to highlight few those things which are very much necessary. Being a student, we might know. And that's why I would like to highlight the core values of the Constitution. What are the core values of the Constitution? And I will not go into the bookish things. Just I would like to highlight those things which are the values. Those are values, and upon those values the Constitution is based. So I would like to attach the PowerPoint over here so that all the students may see what really I am going to discuss. So can I attach the PowerPoint? Yes, sir. Okay.
देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. come on the core values. You just see, I have just correlated the core values of the constitution. What Gandhi ji has thought about the freedom struggle. हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको ध्यान दीजिए and see the constitutional values also. You will find that the entire constitutional values are based on what Gandhi ji has thought for the freedom struggle. तो देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो स्वतंत्रता संग्राम ये 5 जो एलिमेंट हैं इस 5 एलिमेंट पे बधा हुआ था. And after that, after we got independent, the whole constitution is based on all 5 values. तो इन 5 वैल्यूज को अगर हम ध्यान दें तो 5 वैल्यूज क्या हैं? नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 स्वराज, नंबर 4 अंत्योदय, and the last one is सर्वोदय. So all these 5 elements are there in our constitution, and we will have to see how these things have been incorporated under the constitution by various provisions of the constitution, by incorporating various provisions of the constitution. So I'm just going to discuss one by one. You see this satya, how the concept of satya was incorporated under the constitution. That is very much important. So satya means justice for all. Satya means justice for all. So justice should be provided equally to all. तो क्वेश्चन उठता है कि ये सत्य जस्टिस से कैसे कोरिलेट हो गया? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, प्रेम्बल में देखिए लिखा हुआ है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो हाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ सत्य अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप देखिए जरा सा इस कॉन्सेप्ट को आप देखने की कोशिश करिए कि हाउ वी कैन गेट जस्टिस. कहा जाता है सत्य के लिए कहा जाता है कि द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस एज डिफिकल्ट एज द क्वेस्ट ऑफ हॉली गॉड. जो न्याय है उसको पाना उतना कठिन है जैसे पवित्र भगवान की खोज को पाना. ये डायस ने कहा. अब इस न्याय को पाने के लिए आपको सत्य मार्ग अपनाना पड़ेगा. हाउ यू विल हैव टू फॉलो अ सत्य मार्ग. दिस इज अ वेरी क्वेश्चन. तो आप छोटा सा उदाहरण को आप जरा याद करिए. क्या है कि कभी भी आप देखिए, जस्ट सी इन द कोर्ट व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट. न्यायालय में क्या होता है? न्यायालय में देयर आर टू पार्टीज. दे मेक एन आर्गुमेंट बिफोर द जज. व्हाट फॉर? किस लिए? इसलिए क्योंकि सत्य उनके सामने आ जाए. दे आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट जस्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. और जब सत्य सामने आ जाएगा, अगर एक पार्टी कहती है कि मिस्टर एक्स ने मर्डर किया और दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, इन्होंने मर्डर नहीं किया, तो अल्टीमेटली व्हाट वाज द फैक्ट, रियल फैक्ट? अनलेस एंड अनटिल इट विल नॉट कम विद इन द बिफोर द कोर्ट और बिफोर द कोर्ट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल. तो न्याय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है भाई. तो पवित्र भगवान की खोज करते करते न जाने कितने ऋषि मुनि थे, वो खोज करते करते और अपनी जीवन को समाप्त कर दिए और सत्य को प्राप्त नहीं कर सके. ठीक है, न्याय प्राप्त नहीं कर सके. लेकिन इसी की खोज, न्याय की खोज अगर करना है तो सत्य मार्ग से होकर चलना पड़े. और सत्य मार्ग के लिए जो न्यायालय में जब दो पक्ष आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सत्य के मार्ग की खोज करते हैं. एंड अल्टीमेटली व्हाट दे डू, व्हाट दे वांटेड टू अचीव, they wanted to achieve justice through the सत्य पाथ. सत्य के रास्ते पर चलकर न्याय पाने की कोशिश करते हैं. और इसीलिए they argue before the court so that truth may be find out before the court. तो न्यायालय के सामने सत्य आ जाए, इसलिए ऐसा वो करते हैं. तो सत्य के रूप में गांधी जी ने सत्य मार्ग अपनाया और इस देश को स्वतंत्रता सत्य के आधार पर दिलाया. तो यही सत्य भारत के संविधान का पहला एलिमेंट बना कि नहीं, अगर लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना है
ठीक है, जस्ट टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू द पीपल विदाउट अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ सत्य, we cannot do justice, all this justice, the social, economic and political justice to the people. That's why our constitution makers, they have adopted those provisions under the constitution which have followed the satya marg, the truth marg, सत्य रास्ता के रास्ते को अपना करके और न्याय की खोज के रूप में अपनाने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रावधान, अभी हम एक एक करके आएंगे, अभी तो हम हल्के में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक करके आएंगे और बताएंगे कि कैसे सत्य के मार्ग पर हम चले, या कैसे हम बाकी चीजों पर जो आगे चीजें आने वाली है उस पर चले। तो पहला है सत्य, जिसके रास्ते से हम न्याय पाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा रास्ता है अहिंसा, अहिंसा का रास्ता। क्वेश्चन है कि क्या एक अत्याचारी समाज, क्या एक टायरेनिकल स्टेट लोगों को न्याय दे सकता है? नो, सर्टेनली नॉट। एंड दैट इज व्हाई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो हमारा जो कल्चरल वैल्यूज है, उन कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रख करके दे हैव अडॉप्टेड दैट वी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन शैल रन ऑन द पाथ ऑफ द अहिंसा। सो अहिंसा के रास्ते पर हम चलेंगे। और कैसे चलेंगे अहिंसा के रास्ते पर? हमारा कल्चरल वैल्यू क्या कहता है? हमारा जो कल्चरल वैल्यू है वो ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कहीं न कहीं से जो अहिंसा का रास्ता है वह वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात करता है। दैट टॉक्स अबाउट वर्ल्ड पीस, यानी पूरी दुनिया में शांति रहे, और शांति के साथ साथ लोगों का कल्याण हो। शांति और कल्याण के रास्ते पर चल करके, यानी वो तभी चला जा सकता है, शांति और कल्याण का रास्ता तभी चुना जा सकता है जब हम अहिंसात्मक हो, हिंसात्मक ना हो। यानी लोगों को धैर्य से सुने, धैर्य से समझें और धैर्य से के साथ व्यवहार करें लोगों के आचरण के साथ, तब जाकर के कहीं हम लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे, और अहिंसात्मक रूप से चलेंगे तभी लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे। तो इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग अच्छे दिखें, और सब किसी को कोई दुख ना हो। ये तभी हो सकता है जब हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। यानी गांधीयन फिलॉसफी कैसे चलेंगे इसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसलिए गांधीयन फिलॉसफी कहीं ना कहीं से हमारे संविधान के दायरे में, संविधान के प्रोविजंस में है कि हम अहिंसा के रास्ते पे चले। यानी हिंसा को भारत का संविधान स्वीकार नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर एक्सेप्टेड द वायलेंस, it always rejected the violence, and that is why we have adopted a concept of ahimsa under the constitution of India. इसलिए भारत के संविधान में कहीं न कहीं से हमने अहिंसा को अपनाया। अब अहिंसा को अपनाने के लिए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देखिए, आप फंडामेंटल ड्यूटीज को देखिए, बहुत सारे प्रावधान आपको मिलेंगे। मैंने प्रावधान के प्रोविजंस नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें आपको क्लास लेक्चर नहीं है ये, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रोविजंस को नहीं लिखा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अहिंसा को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाने की कोशिश की गई। तो आप देखें, हम आर्टिकल 21 की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम उसको बाद में बात करते हैं। हमारे यहाँ सोचिए कि अहिंसा के लिए, अहिंसा की बात जब की जाने लगी तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि सोचने की चीज है। क्या अहिंसा के लिए एक श्लोक याद करिए, वैदिक श्लोक, अहिंसा लक्षणों धर्मो अधर्मश्च प्राणिनां वध। अहिंसा लक्षणों धर्मो अधर्मश्च प्राणिनां वध, तस्मात् धर्मार्थिभिः लोके कर्तव्या प्राणिनां दया। इसका मतलब क्या है? धर्म का लक्षण अहिंसा है और प्राणियों का वध अधर्म है। किसी भी प्राणी का वध, चाहे वो कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, और वो लिविंग क्रिएचर ह्यूमन बीइंग हो सकता है, लिविंग क्रिएचर प्लांट हो सकता है, ट्रीज हो सकती हैं, और लिविंग क्रिएचर एनिमल्स और बर्ड्स भी हो सकते हैं। यानी कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, अगर उसे हम नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ हम हिंसा करते हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यही कॉन्सेप्ट हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी लाने की कोशिश की। हाउ दे हैव प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ काउज एंड calves एंड अदर meat एंड ड्रॉट कैटल। ये गाय को या बछड़े को जो दूध देती हैं, इन्हें मारने से रोकना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये
स्टेट को एक तरह से डायरेक्शन दिया गया था कि वक्त पड़ने पर आप इस तरह का कानून बनाएंगे, और बहुत सारे स्टेट्स ने इस पर कानून बनाया भी। तो कहने का मतलब ये कि आप जीवों पर दया करो, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज थी उसको, उसकी ओर कहीं ना कहीं से हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसको लाने की कोशिश करी, जिससे कि अहिंसा, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, पहला सत्य, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, और वो सत्य के रास्ते पर चलते समय हमें अहिंसा का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम सत्य के रास्ते पर चल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं से अहिंसात्मक व्यवस्था की, अहिंसा की व्यवस्था संविधान के दायरे में किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में स्लॉटर ऑफ काउस की को रोका गया, प्रोहिबिट किया गया। इसी तरह से प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी आप पेड़ों को, पौधों को, और जितने भी वन के जीव हैं, वन्य जीव जिसे कहते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अगर उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करते, आप जरा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, जब भगवान राम जंगल जंगल घूम रहे थे तो उनकी क्या स्थिति थी। वह पशुओं से, पक्षियों से पूछते थे, रे खग मृग नयनी, क्या है खग मृग नयनी, सबसे पूछते थे कि भैया बताओ क्या तुमने सीता को देखा है। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय कहीं न कहीं से सत्युग में देखिए कि कहीं न कहीं से मनुष्य और जानवरों के बीच वार्तालाप भी हुआ करता था, बातें हुआ करती थी। इसका मतलब हो गया कि कितना कनेक्शन था ह्यूमन बीइंग और कैटल के बीच में, ह्यूमन बीइंग और पेड़ के बीच में। हम पेड़ों के नीचे बैठ करके, पीपल के पेड़ों के नीचे बैठकर पूजा करते हैं। क्यों? इन्हीं कारणों से कि हम, वो एक लिविंग क्रिएचर है, हम उसको काटे नहीं, उसको बचाएं। आज भी पूरे दुनिया में पेड़ों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, भूमि जो है जल को बचाने के लिए, या भूमि को पॉल्यूट ना हो, एयर पॉल्यूट ना हो, जस्ट टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो सब इनसे अफेक्टेड हैं, और इन्हें अगर नहीं बचाएंगे तो नेचुरली फिर हम कहीं से भी अहिंसात्मक नहीं कहे जा सकते। तो हिंसा को रोकने के लिए ह्यूमन बीइंग को, तमाम जीवों के ऊपर दया करने की व्यवस्था की गई, और यहाँ ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों को, जल को, जमीन को, सबको सुरक्षित रखने की बात की गई। तो इस रूप में कहीं न कहीं से देखा जाए तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करके, उस लिविंग क्रिएचर को प्रोटेक्ट करने की बात करके, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात करके, और अभी आगे तो हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात भी करेंगे, जब आर्टिकल 21 की बात भी करेंगे, तो सबको प्रोटेक्ट करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी तरह से किसी के लाइफ को अकारण आप नहीं नष्ट करेंगे। तो यानी नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो हिंसात्मक है, और इस हिंसात्मक प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की गई है संविधान के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो जो गांधी की दूरदर्शी स्वभाव, दूरदर्शी सोच थी कि सत्य के रास्ते से हम चलेंगे, अहिंसा के रास्ते से चलेंगे। हमने अपनी लड़ाई, फ्रीडम फाइट को भी हमने अंग्रेजों से हम हथियार उठाकर नहीं चले। हमें पता था कि हम हिंसा का, गांधी जी कहते थे कि अगर हम हिंसा करते हैं किसी के प्रति, अगर हम किसी के प्रति भी हिंसा करते हैं, हमने किसी को, उदाहरण के लिए ले लीजिए, हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, पलट के मुझे वो 2 थप्पड़ मारेगा, फिर मुझे भी रिएक्शन आएगा, मैं उसको पलट के 4 थप्पड़ मारूंगा। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हिंसा के क्वायल में अगर हम एक बार उलझ गए तो फिर ये पूरी लाइफ हम हिंसा के क्वायल में उलझते चले जाएंगे। एक बार हमने हिंसा करी तो फिर प्रतिहिंसा होगा, फिर हिंसा होगा। तो हिंसा प्रतिहिंसा नहीं, यानी वायलेंस काउंटर वायलेंस, काउंटर वायलेंस का फिर काउंटर वायलेंस। ये वायलेंस काउंटर वायलेंस का जो एक सिस्टम है ये लगातार चलता रहेगा, और उसका नतीजा ये होगा एक दिन कि लोग हिंसा के क्वायल में उलझ कर रह जाएंगे और लोगों की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो लाइफ अगर किसी की खतरे में पड़ गई, पूरी जिंदगी आपकी खतरे में पड़ गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन का रेलेवेंस क्या रह जाएगा, लॉ का रेलेवेंस क्या रह जाएगा। इसीलिए लॉ के रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों की लाइफ खतरे में ना हो, लोगों की लाइफ हिंसात्मक ना हो। इसलिए उस हिंसात्मक लाइफ को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अहिंसा का रास्ता चुने, और अहिंसा के रास्ते से चल करके लोगों के लाइफ को सर्व करें, लोगों के जीवन को एक अपने उपयोगी बनाएं।
तो इस रूप में अहिंसा के रूप में लेकर चले। तीसरी बात जो थी वो स्वराज थी। जैसा कि हम जानते हैं स्वराज यानी सुराज, सुशासन का राज कैसे होगा। क्या आप मानते हैं कि लोगों सुशासन की राज की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, वो इसमें बहुत सारी बातें इसमें निकल करके आती हैं। उसमें एक बात तो है कि जो स्वराज की बात है वो इट टॉक्स अबाउट ऑल द पावर एंड अथॉरिटी दैट मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम द पीपल, यानी जनता से वो डेराइव होना चाहिए। किसी को ये सोचे कि ये हमारा राज है, हम चाहते हैं हमारा राज है, मिस्टर वाई चाहते हैं कि नहीं हमारा राज उन्हें महसूस हो। इसका मतलब सबको ये लगे कि ये राज हमारा, ये शासन हमारा है, ये किसी राजा का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हमारा है। तो इसका मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीपल गवर्नमेंट, अ पीपल गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं से हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात इसमें करते हैं। तो और इसलिए भारत के संविधान में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कल्पना करी। दूसरी चीज में इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, अगर देश स्वतंत्र नहीं होगा तो स्वराज की बात नहीं कर सकते आप। आपका अपना राज तभी होगा जब इंडिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट कंट्री की बात की गई और इस इंडिपेंडेंट कंट्री में कहीं ना कहीं से यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात हो गई। अगर आप अपना स्वराज चाहते हैं तो जब तक यूनिटी नहीं होगी, आप मिलकर नहीं रहेंगे, एकता के साथ नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे को सर्व नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। हम एक दूसरे से निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक दूसरे पर जब निर्भर हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा। और इस नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फेडरलिज्म, अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर को, ये सब चीजें हम डिटेल में फिर आपको डिस्कस करेंगे। अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो उसमें क्या है, स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशनशिप की बात है, वहां भी यूनिटी होनी चाहिए। तो वहां पर भी अगर यूनिटी नहीं होगी तो हम स्वराज या सुराज की बात नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं से इंडिविजुअल्स इक्वलिटी फॉर ऑल, अगर सारे लोगों को समान रूप से ट्रीटमेंट नहीं देते तो ऐसी स्थिति में, या फ्रीडम फॉर ऑल अगर नहीं देते तो ऐसी स्थिति में फिर हम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। ये सब चीजें हमारे संविधान के अंतर्गत हैं। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो हमारे संविधान में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको कि हम पाने की कोशिश तमाम प्रावधान के अनुसार करते हैं। हम एक एक करके जरा आए और देखें। स्वराज का जो पहला है कॉन्सेप्ट वो फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो स्वतंत्रता चाहिए। अगर हम परतंत्र हैं, हमें अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और हमें कहा जाए कि नहीं, आपको सारी दुनिया की अच्छी चीजें उपलब्ध हैं, आपको अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छे फूड और क्लोथ्स मिलेंगे, तो क्या ये स्वराज की कल्पना का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से हमें इस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए जिससे कि हम केवल जानवरों की तरह जीना न सीख सकें। यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में आपने पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया। और आपको पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में आते आते 1970 तक आते आते इसका इतना वाइड इंटरप्रिटेशन कर दिया, दैट वाज इंटरप्रेटेड इन वेरी वाइड सेंस। तो इतना जबरदस्त इंटरप्रिटेशन कर दिया कि उस इंटरप्रिटेशन का आज जो स्थिति है वो ह्यूमन राइट्स की ओर बढ़ चला है। कोर्ट ने क्या कहा है आप सभी को पता है कि राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो ह्यूमन डिग्निटी, जब तक मानव गरिमा यानी प्राण का अधिकार के अंतर्गत मानव गरिमा का अधिकार है। और अगर मानव गरिमा का अधिकार की बात आप करते हैं तो वो मानव गरिमा का अधिकार तभी सफल होगा जबकि लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित हो। यही कारण है कि जस्टिस जे.एस. वर्मा ने बड़ा क्लियरली कहा कि द ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विंटेसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव गरिमा मानव अधिकार का सारांश है। अगर किसी की गरिमा को नष्ट कर दें तो निश्चित तौर पर मानिए कि किसी के मानवाधिकार को आप सुरक्षित नहीं रख सकते। मैं क्लास में अक्सर उदाहरण भी देता हूं। आप किसी को अपने घर बुलाएं और उसे आप भोजन पर आमंत्रित करें, और भोजन पर आमंत्रित कर दिया आपने, जब वो पहुंचे आपके घर, और मानिए कि जब वो खाना खाने वाले हैं उसी समय आपने उनको 2-4 अपशब्द कह दिया। अब जैसे ही आपने 2-4 अपशब्द कह दिया तो उनकी अगर 4 रोटी की भूख रही होगी
तो निश्चित तौर पर वह 2 रोटी या हो सकता है 1 रोटी ही खा करके उठ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उनका जो फूड वो लेते, जो आपके घर वो खाते, वो सिर्फ उनकी गरिमा नष्ट होने के कारण उस खाना को उन्होंने खाना स्वीकार नहीं किया, ठीक से स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं से ह्यूमन डिग्निटी के बिना आपकी ह्यूमन लाइफ बेकार है। इसीलिए कोर्ट ने कहा था कि जानवरों की तरह जीना जीना नहीं, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीना। तो ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विंटेसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, कोर्ट ने कहा, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा। तो ह्यूमन डिग्निटी का सारांश मानवाधिकार का यही कारण है कि मानवाधिकार का एक स्वरूप, बड़ा स्वरूप आर्टिकल 21 के दायरे में खुल गया, डोर खुल गया, जिससे कि लोगों को मानवाधिकार मिल सके। यानी कहीं ना कहीं से आपकी जो अधिकार सीमित थे, पर्सनल लिबर्टी तक जोड़ रखा था, उसको लिबर्टी तक ला दिया। पर्सनल शब्द का था एक तरह से हो लिया, और इंटरप्रिटेशन करके जब मानवाधिकार में कई अधिकार आपको जोड़े गए, तो यानी आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं, आपकी जो फ्रीडम है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, उसका दायरा बढ़ने लगा। सो द लिमिट ऑफ द फ्रीडम दैट वाज इनहैंस्ड with the interpretation of Article 21 of the Constitution by the Supreme Court in Menaka Gandhi case. Thereafter, many cases has been interpreted by the Supreme Court, and in that all those cases, court has given various rights to the people, and now the people, they are enjoying all those rights. अभी देखिए रिसेंटली आपके सामने जो रिसेंटली पुत्ता राजा के केस में कोर्ट ने क्या कहा कि आपकी राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट धीरे धीरे करके आपकी प्राइवेसी तक पहुंच गई, और प्राइवेसी को भी आपको फंडामेंटल राइट के रूप में गारंटी करने लगी। तो इसलिए आपकी स्वतंत्रताएं, आप किसी प्रकार से बाधा न पहुंचे, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, इसलिए स्वराज के लिए जरूरी है कि आपको स्वतंत्रता मिले। स्वराज का मतलब स्वराज, अपना राज। और अगर आपका अपना राज, अपना शासन स्थापित करना है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि कहीं न कहीं से स्वराज के लिए जरूरी है कि आपको स्वतंत्रताएं मिले। आप थोड़ा सा याद करिए कि हॉब्स, लॉक, रूसो को, ठीक है, लॉक ने कहा था कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार हैं जो इंसान अपने पास सुरक्षित रखता है। These 3 rights, the people they keep with themselves all these 3 rights, and rest of the rights has been handed over to the king. राज्य उसने राजा को सौंप दिया बाकी अधिकार, लेकिन ये 3 अधिकार, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 अधिकार अपने पास रखते हैं। आप जरा इसका अर्थ लगाइए, कितना बड़ा अर्थ है। लाइफ यानी गर्दन अपना किसी के हाथ में नहीं देंगे, तो लाइफ अपने हाथ में रखेंगे, इसकी स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। लिबर्टी, स्वतंत्रता, बाकी इस लाइफ को एंजॉय करने के जितने भी मीन्स हैं, तरीके हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। वो हम किसी को सौंप नहीं सकते। अगर उसे हम सौंप देंगे तो हमारे लिए स्वराज का कोई कल्पना ही नहीं रह जाएगा, हमारे अपने राज का कोई कल्पना ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए लिबर्टी हमारे पास होना चाहिए। और प्रॉपर्टी भी अगर हम दे देंगे तो हमारी लाइफ के लिए कोई, अगर मान लीजिए हमारे पास 10 रोटियां हैं और हम किसी को सौंप दें कि भैया आपके डिस्पोजल पर है, आप मुझे रोटियां दीजिए तो मैं खाऊंगा, नहीं देंगे तो हम नहीं खाएंगे, तो हमारी लाइफ तो हम तो खत्म हो जाएगी। इसीलिए लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 राइट्स जनता किसी को नहीं सौंपती, बल्कि अपने पास रखती है। तो ये एब्सोल्यूट कहते हैं, राइट की बात करते हैं कहीं न कहीं से जॉन लॉक। लेकिन हमारे संविधान में एब्सोल्यूट राइट आपको नहीं मिला है, नहीं मिला, संविधान में शुरू में नहीं मिला था, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहीं न कहीं से इंटरप्रिटेशन कर करके धीरे धीरे वो राइट्स जहां पे प्रतिबंध आपको लगे थे, उन प्रतिबंधों पर विराम लगाते हुए आपको अधिकार वापस देती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब स्वराज की ओर धीरे धीरे कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम बढ़ रहे हैं। स्वराज का मतलब स्वराज, यानी स्वतंत्र हो, अपने रूप से अपने निर्णय ले सके, और वो स्वतंत्रताएं धीरे धीरे हमें मिलती जा रही हैं। और एक किसी भी आइडियल स्टेट में, एक आइडियल स्टेट के लिए जरूरी है कि धीरे धीरे सारे अधिकार वापस कर दिए जाए जनता से, जो कि रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या मैच्योरिटी लेवल उनका ऐसा आ चुका है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निफाइड लाइफ कोर्ट ने इवॉल्व किया, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए, दैट डिग्निफाइड लाइफ हैज ओपन्ड द डोर फॉर द ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस। मानवाधिकार जो विधि शास्त्र है, उसका रास्ता खोल देता है, और वहां से हमें नए अधिकार मिलते हैं। हमें जब अधिकार मिलते हैं तो एक तरह से स्वतंत्रताएं नई मिलती हैं, और नई जब स्वतंत्रताएं मिलती हैं तो हम स्वराज की ओर बहुत आसानी से
बढ़ चले होते हैं। और दूसरा देखें, हमने रेड कलर किया, बाकी सब तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने रेड कलर से कुछ चीजें हाईलाइट की जो कि बहुत समझने की चीज है। दूसरा है थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप देखिए कि सारे लोगों को ये स्वतंत्रता है कि वह जो भी बिलीव करते हो, किसी धर्म में बिलीव करते हो, किसी जात में बिलीव करते हो, उनके बिलीव पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। बस एक ही प्रतिबंध है कि फोर्सफुली आप किसी को बिलीव नहीं करा सकते। इसका मतलब आपकी बिलीफ, यानी आप जैसा सोचते हैं, आपको लगता है कि इस्लाम अच्छा है, हम इस्लाम के साथ जीना चाहते हैं। आप खूब जीने की स्वतंत्रता है। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं सनातन धर्म के साथ जीना चाहता हूँ, बौद्धिज्म के साथ जीना चाहता हूँ, सिखिज्म के साथ जीना चाहता हूँ, तो आपको खूब जीने की स्वतंत्रता है, यानी उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कुछ प्रतिबंध जो लगे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में लगे हैं। तो पब्लिक कहने का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का अगर आप वायलेशन नहीं कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जो रखा है, या पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के मूल अधिकार के किसी का उल्लंघन न करते हो अगर आप, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप एंजॉय कर सके। तो कहीं ना कहीं से आपको अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करने के सारे प्रावधान संविधान के अंतर्गत मिले। बस एक ही बात ध्यान रखा गया है कि कुछ प्रतिबंध आपको जो लगाए गए हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि जब आपको राइट्स मिलते हैं, तो राइट्स जैसे ही मिलते हैं और आप उस राइट्स को एंजॉय करते हैं, तो नेचुरली उस राइट्स के साथ सर्टेन ड्यूटीज भी इवॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए उन ड्यूटीज का पालन कराने के लिए आप जब चारों ओर हाथ घुमाते हैं तो आप किसी की बॉडी पे टच न कर जाए, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। राइट टू लाइफ में आपको चारों ओर हाथ घुमाने का अधिकार है, लेकिन किसी की बॉडी को टच न करे, ये बचाए रखने का भी कोशिश संविधान के निर्माताओं ने किया और ड्यूटी के रूप में इंपोज कर दिया, कहीं ना कहीं प्रतिबंध के रूप में डाल करके एक ड्यूटी आप पे डाल दिया कि आप ऐसा काम न करें। तो निश्चित तौर पर लोगों के, आपकी स्वतंत्रताओं के साथ साथ अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं का भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए कुछ प्रतिबंध के रूप में अन्य लोगों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखा गया है और वहां पर ऐसा करने से मना किया गया है। तो कहीं ना कहीं से सभी लोगों को स्वराज पाने के लिए स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से व्यवस्था किया गया है संविधान के अंतर्गत। अब आप आइए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको अगर स्वतंत्रता मिली है तो निश्चित तौर पर स्वतंत्रता को व्यक्त करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। और स्वतंत्रता को व्यक्त करने के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप मुंह से बोलकर स्वतंत्रता कर सकते हैं, को व्यक्त कर सकते हैं, या तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट होगी, या तो फिर आप उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो आप चाहे लिख कर सकते हैं, कार्टून बना के कर सकते हैं, कैरिकेचर से कर सकते हैं, बहुत सारे माध्यम है। टेलीविजन पे आप जो है एग्जिबिट करके कर सकते हैं, फिल्मों के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं उसको आप दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। आज हम जो आपको शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें जो कह रहे हैं आपके सामने, कहीं न कहीं से संविधान दिवस के दिन अगर ये अधिकार हमें नहीं मिला होता कि बोलने का अधिकार आपको नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक बिफोर एनीवन, अगर हमें ये अधिकार ये डाल दिया जाता कि नो वन हैज राइट टू स्पीक बिफोर एनीवन, देन हाउ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ बिफोर यू ऑल? It was not feasible for me to discuss on the Constitution Day this topic, and that is why this right has been provided under the Constitution so that everyone can share their views. जब हम शेयर करते हैं, अपनी व्यूज को शेयर करते हैं, तो क्या होता है? एक बड़ी घटना घटती है। जैसे हम शेयर करते हैं तो आपके पास एक थॉट पहुंचता है। जब एक थॉट पहुंचता है तो नेचुरली उस थॉट पर आप थिंकिंग शुरू करते हैं अपनी। जब थिंकिंग शुरू करते हैं तो एक डिबेट, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। तब जाकर के कहीं दोनों तरफ से एक विजडम क्रिएट होता है, एक बुद्धिमत्ता क्रिएट होती है आपके दिमाग में। तो यानी बौद्धिक क्षमता को बनाने के लिए, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आपको इस तरह की स्वतंत्रताएं मिलें। यानी आपको स्वराज स्थापित करना, अपना राज स्थापित करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं से आपको स्वतंत्रताएं अगर नहीं मिलेंगी तो स्वराज की कल्पना करना व्यर्थ है। तो इसीलिए गांधीयन कॉन्सेप्ट जो था स्वराज में देखिए जो देश का स्ट्रगल था, फ्रीडम फाइटर्स का जो स्ट्रगल था, उनका कहना था कि पूर्ण स्वराज में चाहिए, यानी हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना, हम आपके कानून के अधीन नहीं रहेंगे, हम जो भी कानून बनाएंगे अपने लिए, अपनी कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखकर बनाएंगे। सो गांधी वाज वेरी मच क्लियर दैट व्हाटएवर द लॉ विल बी देयर, वी शैल मेक लॉ फॉर आवरसेल्फ।
द पीपल विल मेक लॉ फॉर ourselves, ठीक है, फॉर themselves, keeping in view their own cultural values, not keeping in view the Britishers' cultural values. And that is why Gandhi was very much clear on this issue. And that's why Gandhi was of view that freedom of speech and expression that should be guaranteed to each and everyone equally under the constitution. संविधान के अंतर्गत ये स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती तो क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस आज होता? तो क्वेश्चन उठता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर नहीं होता तो क्या डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज एंड व्यूज लोगों को मिलता? नहीं मिलता। यानी सरकारें अगर बैठ करके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का वायलेशन कर रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का वायलेशन कर रही हो तो क्या हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता? तो क्या आप सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन न मिलने की दशा में हम जस्टिस कर पाते लोगों के साथ? नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में जब हम नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? पहुंच रही है सर। ओके, तो ऐसी स्थिति में फिर हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहीं न कहीं से इस स्वतंत्रता को भी संविधान के अंतर्गत पिरोया गया है। इसके अलावा बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, मैं उसे नहीं जा रहा, अरेस्ट है, डिटेंशन है, वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब ये लाइफ एंड लिबर्टी में बहुत सारी चीजें आ गई, उसमें अरेस्ट डिटेंशन भी आ ही जाएगा घूम फिर करके। तो कहने का मतलब ये है कि स्वराज के लिए जो पहला मानक है, जो पहला नॉर्म है, द फर्स्ट नॉर्म इज फ्रीडम। Without having freedom, without giving freedom to the people, Swaraj, the concept of Swaraj cannot be entertained, ठीक है, उसे एंटरटेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए संविधान के अंतर्गत गांधीयन फिलॉसफी का जो ये स्वराज का कॉन्सेप्ट था, इसे अडॉप्ट किया गया। लेकिन पहला है फ्रीडम, दूसरा इक्वालिटी एंड फेयरनेस, ठीक है, ओके, फ्रीडम हैज बीन प्रोवाइडेड, स्वतंत्रता हमें मिल गई, बट दैट फ्रीडम हैज बीन प्रोहिबिटेड फॉर समवन कि नहीं, मिस्टर एक्स आप ये राइट एंजॉय नहीं कर सकते, मिस्टर वाई ये राइट एंजॉय कर सकते हैं। इफ दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी देयर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वेरियस बेसिस, देन हाउ वी कैन एंजॉय द फ्रीडम? दैट विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। एंड दैट इज वाई फॉर स्वराज it is required under the constitution that the equality clause be there under the constitution, and equality clause in terms of fairness. So every authority of the constitution, every authority of the government, every person, every authority of the government and the constitution and the law, they must act fairly, and the government should treat all the equally. सभी लोगों को समान रूप से ट्रीटमेंट करें, सभी लोगों को के साथ न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। इसीलिए डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को मना किया गया। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी क्लॉज आर्टिकल 14 में लाया गया, और आर्टिकल 14 में इक्वलिटी क्लॉज को दो रूप में रखा गया। और हमें आपको पता है कि इक्वलिटी क्लॉज जो दो रूप में आया, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई। तो इन सर्टेन केसेस इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, ये किया गया कि इस कानून की नजर में सभी बराबर हैं, समान हैं। लेकिन दूसरी ओर की व्यवस्था देखें कि अगर सभी को बराबर कर देंगे तो दो क्या होगा? द पर्सन्स हु आर लिविंग इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जो कमजोर तबके के लोग हैं, बहुत ही कमजोर हैं, ऐसी स्थिति में उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, उन्हें कैसे फ्रीडम दिया जाएगा? तो दैट विल बी इनइक्वल ट्रीटमेंट। अब एक भाई, हम क्लास में हमेशा कहते हैं कि एक लंगड़े को, अगर व्यक्ति को, एक पैरालाइज्ड पर्सन को एक सही व्यक्ति के साथ रेस करा देंगे तो दैट विल बी इनजस्टिस, ठीक है, वो अन्याय होगा। तो उस अन्याय को दूर करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात की गई और रिजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई। तो कहीं ना कहीं से जो रिजनेबल क्लासिफिकेशन की बात है कि गरीब, अमीर, ठीक है, महिला, पुरुष, इन सब में जो भेदभाव था उनको अलग अलग क्लास मान करके डिफरेंटली हम ट्रीट करें, और डिफरेंट ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था भारत के संविधान लिया गया। आप देखिए, अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात की गई, ब्रिटेन में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई, इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, ब्रिटेन में की गई। लेकिन अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात की गई, रिजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई। तो आप जब इस व्यवस्था में रहते हैं
जहां के डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ आर्टिकल 15 में ये भी व्यवस्था दी गई कि कहीं ना कहीं से जो लोग उपेक्षित हैं सोसाइटी में, उन उपेक्षित लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करिए। आर्टिकल 14 में जो रिजनेबल क्लासिफिकेशन की बात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तहत की गई, उसकी क्लासिफिकेशन करिए और उस क्लासिफिकेशन को करके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करिए, जिससे कि वो अपने आप को उपेक्षित न महसूस हो। और अगर डिफरेंशिएट करके उन्हें अलग से ट्रीटमेंट किया गया, तो ऐसी स्थिति में दे विल ऑल्सो सर्व इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशन, और देश की मुख्य धारा में वो भी देश की सेवा को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से स्वराज केवल कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं था। स्वराज में वो सारे लोग थे जो दलित थे, वंचित थे, कमजोर थे, सबके लिए व्यवस्था की गई। इसीलिए इक्वलिटी क्लॉज को इस रूप में लिया गया कि ये फेयरली सबके लिए एप्लीकेबल हो, सबको रेमेडी देने वाला हो। इस देश की महिलाएं हजारों साल उनको किचन में दबा के रख दिया गया, तो क्या उन्हें पूरी जिंदगी किचन में रखा जाए? ये संविधान निर्माताओं के दिमाग में था और गांधी जी के दिमाग में भी था। तो इसीलिए वो कहे कि स्वराज तब तक पूरा नहीं है। एक बार मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूं, नेहरू जी का आप बुक पढ़िएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हालांकि आज तो फैशन चल पड़ा है कि नेहरू को क्रिटिसाइज करना, गांधी को क्रिटिसाइज करना। मैं थोड़ा उस मत का नहीं हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज ब्लाइंडली नहीं करता, मैं उसके काम पे क्रिटिसाइज करता हूं, काम पे ही सराहना भी करता हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप जरा पढ़िएगा एक बार। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बार गांधी जी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें उन्होंने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि प्रधानमंत्री थे। तो वो जब नेहरू जी जब लोगों के बीच गए, तो वहां बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगा रहे थे। तो उस नारे के दौरान नेहरू जी ने पूछा कि ये भारत माता कौन है? आप में ध्यान रखिएगा, मैं इक्वलिटी और फेयरनेस की बात कर रहा हूं और उसी के कंटेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूं। ये भारत माता कौन है, हमें और आपको समझने की चीज है। आज संविधान दिवस में हमें आपको समझने की चीज है कि भारत माता की जय जो आजकल बोले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो भारत माता की जय वो समझते ही नहीं, वो भी नहीं समझते। ठीक है, हमें और आपको समझने की जरूरत है। शायद अगर हम इसको समझ लिए तो देश का जो संविधान है, देश का संविधान वो ज्यादा हंसेगा और खिलखिलाएगा भी। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि भारत माता जो नेहरू ने कल्पना करी थी वो क्या था। तो नेहरू जी की जो कल्पना थी वो ये, उन्होंने कहा, बच्चे नहीं जवाब दे पाए भारत माता की जय का, तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि भारत माता कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत माता हम हैं, भारत माता आप हैं, भारत माता ये हैं, सबकी ओर दिखाते हुए, भारत माता ये पेड़ हैं, भारत माता ये पौधे हैं, भारत माता ये जल है, ये आकाश है, ये हवा है, ये सब भारत माता है। अगर हम न्याय करने उतरेंगे और केवल हम आप की बात करेंगे, जल की बात नहीं करेंगे, पौधे की बात नहीं करेंगे, पेड़ की बात नहीं करेंगे, धरती की बात नहीं करेंगे, इन सबको पलूट करते रहेंगे, तो हम भारत माता को का जय होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए ये बात कही गई कि कहीं ना कहीं से जो सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में मानकर चलिए कि भारत माता की जय की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यानी देश का संविधान भारत माता को सर्व करने वाला और भारत माता की ही जय होने की स्थिति न बने, तो वो संविधान का जो रेलेवेंस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच जो सोसाइटी में है या जो उसको दूर करने की व्यवस्था की जाए, और भारत के संविधान में डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को दूर करने की व्यवस्था आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 में, इवन 18 में भी, 18 को कोई लिमिटेड सेंस में ले सकते हैं, 17 तक में दूर करने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए 17 में अनटचेबिलिटी को दूर किया गया, तो कहीं ना कहीं से देखा जाए, और 15 में प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई। माने डिस्क्रिमिनेशन करेगी कानून, संविधान डिस्क्रिमिनेशन करेगी इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शंस, जो कमजोर लोग हैं। यही कारण है कि आरक्षण की व्यवस्था
की गई। यह अलग बात, इस पे भेद हो सकता है कि आरक्षण का जो स्वरूप है वो बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इस पर कोई दो मत नहीं हो सकता कि जो कमजोर तबका है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उस कमजोर तबके का हम परिभाषा क्या दें, वो उस पर भी वाद विवाद हो सकता है, लेकिन कमजोर तबका को हम जरूर प्रोटेक्ट करें जिससे कि वो भी देश के मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। इस ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश देश के संविधान में किया गया है और इसीलिए 15(4) और 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आप देखिए व्यवस्था बनते बनते यहां तक हुई कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं वो पिछड़ रहे थे, वो पीछे जा रहे थे, तो उनकी व्यवस्था भी अल्टीमेटली जाकर की गई और उस व्यवस्था के तहत 15(6) में की गई जिससे कि उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके और उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट हो और उनको भी इक्वलिटी क्लॉज का फायदा मिल सके। तो कहीं ना कहीं से जो स्वराज है वह केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए ना हो जा करके बल्कि समाज के सारे तबके के लिए हो, इसकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई। तो गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज जो बहुत छोटे में हम लोग समझते हैं कि स्वराज का मतलब सुराज, सुराज का मतलब स्वराज मतलब अपना राज, अपना राज नहीं, अपना राज के साथ सुराज, सुशासन का राज। और सुशासन तभी होगा जबकि सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिलेंगे और यह संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई। तो ये समझने की चीज है और जानने की चीज है। तीसरी चीज डिग्निटी, हमने इसकी बात कर दी अभी थोड़ी देर पहले। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड रिनंसिएशन ऑफ प्रैक्टिसेस डेरिवेटिव ऑफ वुमेन। अब वुमेन के लिए कोई भी इस तरह का आचरण करना जो कि महिला के स्वाभिमान और सम्मान के विरुद्ध हो, तो ऐसे आचरण को दूर रखा जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं से अगर डिग्निटी ऑफ की बात जो करते हैं, अगर डिग्निटी नहीं किसी के नहीं है, मैंने आपसे कहा कि किसी को आप 2 थप्पड़ मार दीजिए और उसके बाद खाना दीजिए, किस बात का उसका वो खाना खाएगा, उसके बाकी अधिकार बेकार हो गए। विदाउट आप जब तक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे हैं आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए राइट टू लाइफ के तहत डिग्निटी की बात कोर्ट ने करी कि राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। और ह्यूमन डिग्निटी की जब बात आप करते हैं तो हमने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ह्यूमन राइट्स का दायरा खुल जाता है। और क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी इज द क्विंटेसेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जस्टिस जे एस वर्मा ने अपने एक आर्टिकल में, एक लेख में लिखा था और अच्छी बात कही थी। तो कहीं ना कहीं से डिग्निटी की बात भी हमें समझना होगा और डिग्निटी जो है बिना डिग्निफाइड लाइफ के स्वराज की कल्पना करना व्यर्थ होगा। अब सेक्युलरिज्म पे आ जाइए। सेक्युलरिज्म का मतलब आप लोग शायद केवल धार्मिक ही सेक्युलरिज्म समझते होंगे। सेक्युलरिज्म के 2 मतलब होते हैं, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक जो रिलीजियस जो आप समझते हैं वो मीनिंग होता है। लेकिन इस देश में सेक्युलरिज्म पर बहुत ज्यादा बहस होती रही है और स्वराज का कॉन्सेप्ट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सेक्युलरिज्म को हम मेंटेन नहीं रखेंगे। तो आप समझना होगा हमें कि सेक्युलरिज्म के कंटेक्स्ट में कैसे हम स्वराज को मेंटेन रख सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म को 2 रूप में आप देखिए। पहला रूप जो था, हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, ये सब चीजें आपके लिए पढ़ते रहिए। पहला जो रूप था वो रूप है लिटरल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। जो लिटरल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म है वह है फ्री फ्रॉम बायस, यानी किसी प्रकार का पक्षपाती न होना। यानी सरकार में बैठे हुए ताकतवर लोग जो लोग हैं वह किसी भी आधार पर पक्षपाती नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रीजन के आधार पे, किन्हीं भी आधार पे अगर वो पक्षपाती होते हैं तो माना जाएगा कि दे हैव एक्टेड इन एंटी सेक्युलर एक्टिविटी, दे हैव डन एन एंटी सेक्युलर एक्टिविटी, यानी communal activity, and a communal activity has been done by the person who are sitting in the government। तो सरकार में बैठे हुए लोगों को जो इस बात को प्रोहिबिट किया गया कि यू मस्ट बी अ सेक्युलर वन, यानी आप बायस नहीं रहेंगे, फ्री फ्रॉम बायस रहिए। अगर आप बायस होंगे तो यू कैन नॉट डू जस्टिस विद द पीपुल, और जब बायस होंगे तो लोगों को स्वराज नहीं मिल सकता, यानी हम हमारे अधिकार के साथ आप कहीं ना कहीं भेदभाव करेंगे। जब भेदभाव करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर उसको अपना राज नहीं मिल सकता, तो स्वराज की कल्पना ही करना बेकार हो जाएगी। एक बात। दूसरा कॉन्सेप्ट जो सेक्युलरिज्म इन टर्म्स ऑफ रिलीजन है, धर्म के आधार पे, आपको पता है, हम सबको पता है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। धार्मिक देश तो नहीं है लेकिन धर्म प्रधान देश है। और जब धर्म प्रधान देश है तो एक क्वेश्चन उठता है जो आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो। सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है उसे आपको समझना होगा।
भारत के कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म की जो मीनिंग है वो दो बातें कहती है। एक तो ये, आप देखिए स्वराज को समझिए, हर धर्म के मानने वालों को भी अपने धर्म को मानने को, आचरण करने की स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। अगर वो स्वतंत्रताएं नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर वह स्वराज में नहीं जी रहा, अपने शासन, वो शासन उसका अपना नहीं है बल्कि किसी और का है। और आजकल जबकि आज के देश में जबकि बड़ी समस्या है धर्म को लेकर के, धर्म की लड़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है सरकार में बैठे लोगों के बीच में और जो सरकार से बाहर जनता है उसके बीच में चल रहा है, टग ऑफ वॉर, रसाकशी चल रहा है कि आखिरकार हम कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे धर्म के लोग को टारगेट किया जा रहा है, कुछ कहते हैं कि नहीं, किसी धर्म को, सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा। ये आप लोग निर्णय कीजिएगा कि टारगेट किया जा रहा नहीं किया जा रहा। मैं तो एक कानूनी पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करिए जो कि स्वराज के लिए बहुत जरूरी है। सेक्युलरिज्म की जो कॉन्सेप्ट था वो दो बातें कहती है। एक तो जो एंशिएंट कल्चरल वैल्यू हमारा है, क्या है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभाव, यानी सारे धर्मों को समान रूप से आदर दें। All the religions that must be respected equally without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एक ये हमारा अपना सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट हमारा एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज है, पुराना जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये मूल्य है। एक तो उसे इनकॉर्पोरेट किया गया कि सारे धर्मों का समान रूप से आदर होगा। यही कारण है कि समान रूप से आदर होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को उठाकर देखें आप, तो देखे पाएंगे आप कि सारे लोगों को फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन का अधिकार दिया गया, ताकि सारे लोगों को अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको मैनेज कैसे किया जाए उसका अधिकार दिया गया। ठीक है, उनका अपने धर्मों को कैसे प्रमोट किया जाए उसका पूरा अधिकार दिया गया बिना किसी भेदभाव के। यही सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट था जो भारत के संविधान के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट किया गया, 25-26 में इनकॉर्पोरेट किया गया। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि देयर शैल बी नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट जो है रिलीजियस न्यूट्रल होगा। जो राज्य है, सरकार है, वो किसी प्रकार के धर्म को नहीं अपनाएगा, यानी वो धार्मिक नहीं होगा, पाकिस्तान की तरह थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा। Our country is not a theocratic state, rather a secular state. So secular state in terms कि वो सबको धर्म का पालन करने देगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। मैं आपको बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं क्योंकि अमेरिकन पोजीशन इससे भिन्न है, मैं आपको अमेरिका का पोजीशन नहीं बता रहा, बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तो इसलिए यहाँ पर राज्य हर धर्मों को समान रूप से प्रोटेक्ट करेगी, ये व्यवस्था दिया गया। तो कहीं ना कहीं से समान रूप से जो प्रोटेक्ट करेगी, यानी अगर कोई जरूरत है तो वह संरक्षण देगी, हर धर्म को देगी। कहीं कंप्यूटर की जरूरत है, कहीं कुछ की जरूरत है, देगी, वो ये धर्म के आधार पर रोकेगी नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये स्वराज की ओर बढ़ने के लिए हर धर्म के लोगों को व्यवस्था दी गई कि राज्य समर्थन देगा। एक बार प्रश्न उठा न्यायालय के सामने, तो न्यायालय क्या कि भारत, आप जब हिंदी में कहते हैं तो लोग कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, भारत एक धर्म सापेक्ष राज्य है। भारत धर्म को समर्थन देने वाला राज्य है, भारत के संविधान में भी धर्म को समर्थन देने वाला राज्य बनाया गया है। इसीलिए बल्कि सरकार धार्मिक नहीं होगी, कोई किसी धर्म का विशेष समर्थन नहीं करेगी, वो धार्मिक नहीं होगी। इसीलिए आप देखिए कोर्ट के सामने जब मामला गया तो कोर्ट से को एक्सप्लेन करना पड़ा कि वेदर इंडिया इज अ धर्म सापेक्ष स्टेट और धर्म निरपेक्ष स्टेट, सो इसका सेक्युलरिज्म की हिंदी मीनिंग क्या होगी। कोर्ट ने बड़ा साफ कहा कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन, व्हाट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन, दैट इज नॉट धर्म निरपेक्ष, रादर दैट इज अ पंथ निरपेक्ष। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष के रूप में, पंथ निरपेक्ष जो धर्म है तमाम, उसमें तमाम सेक्ट्स हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको कोई सपोर्ट नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा, निरपेक्ष रहेगा, एब्सोल्यूट टर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कोर्ट ने कहा कि यू सी द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया दैट इज भारत। कोर्ट ने कहा द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ भारत। तो कोर्ट ने कहा भारत का मतलब क्या है, भारत का उन्होंने मीनिंग बताया। तो एथिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कोर्ट ने क्लियर किया कि भारत का मतलब होता है कि भा प्लस रथी, उन्होंने रथी कहा क्योंकि साउथ इंडियन थे, रथी यानी रथ,
जैसे हम लोग अध्ययन रत कहते हैं, यानी डिवोशन, तो भा मीन्स भगवान, उनका भगवान, और रथी मीन्स रत, यानी डिवोशन। तो भगवान के प्रति इस देश के लोग डिवोटेड हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम उनको धर्म निरपेक्ष बना देंगे, यानी उनसे धर्म को छीन लेंगे, तो कुछ वैसी ही परिस्थिति होगी जैसे कि लोगों के शरीर से खून को निकाल लिया जा रहा है। क्योंकि लोगों के ब्लड में जब भगवान बसे हुए हैं, अल्लाह बसे हुए हैं, जीसस बसे हुए हैं, या अन्य धर्म के लोग बसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर के अंदर से उनसे धर्म को छीन लेने का मतलब कि कहीं न कहीं से, या सरकार को उनको रिकॉग्नाइज न करने का मतलब कहीं न कहीं से हम धर्म को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि देश धर्म सापेक्ष हुआ, धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ। तो इंडिया का जो एग्जिस्टेंस है वो भारत पे है, और भारत का मतलब भगवान प्लस रथी, जो भगवान के प्रति डिवोटेड, रथी में डिवोटेड, तो समर्पित, तो भगवान के प्रति समर्पित जहां लोग रहते हो वहां धर्म से लोगों को अलग नहीं किया जा सकता, राज्य को भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य भी इन्हीं लोगों से मिलकर बनती है। तो ऐसी स्थिति में धर्म सापेक्ष राज्य हुआ। लेकिन जब धर्म का सापेक्ष हुआ तो किसी एक धर्म को समर्थन देने वाला नहीं होगा, इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच नहीं होगा। इसका मतलब स्वराज को स्थापित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान रखा गया, और हर व्यक्ति को, हर धर्म के लोगों को कि धार्मिक भावनाओं को, धर्म के को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए जो पहला नॉर्म था कि स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था की गई। यानी स्वराज की, जैसे कहते हैं पूर्ण स्वराज की कल्पना जो हम देश को आजाद कराने के लिए वही पूर्ण स्वराज की कल्पना भारत के संविधान के अंतर्गत भी इनकॉर्पोरेट किया गया, भिन्न भिन्न प्रावधानों के अंतर्गत। सो द कंप्लीट स्वराज, व्हाट टॉक अबाउट द कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज जिसे कहते हैं, एब्सोल्यूट स्वराज जिसे हम कहते हैं, पाने के लिए we have incorporated many provisions under the constitution, so the people of India, they can live freely without any hesitation in this country. इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई, और तब जाकर के हम कहते हैं कि हाँ, हमें पूर्ण स्वराज देश के संविधान ने भी दिया है। लास्ट में आइए, डेमोक्रेसी। इस देश को जब संविधान बना उसके पहले हमारे पास बहुत सारे राजा महाराजाओं का देश था, बहुत सारे प्रदेश थे। अब जो प्रदेश होगा बहुत सारे देश में थे। पता लगा महाराज पटियाला, महाराज बनारस, महाराज मेरठ, महाराज कुछ और, तो तमाम महाराज थे और अलग अलग देशों में बटे हुए थे। एक देश होते हुए अलग अलग देशों में बटे हुए थे, और उनकी बातें सबसे ऊपर होती थी, चाहे वो क्यों ना अत्याचारी हो। यही इसीलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन ऑस्टिन ने कह दिया कि भैया जो है उसकी बात माननी है ना। राजा कौनों का ये तय किया करना पड़ा। अगर स्वराज की बात हम करेंगे तो अपने राज की बात करेंगे, खुद के राज की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें डेमोक्रेटिक पैटर्न पे जाना होगा। यानी डेमोक्रेटिक पैटर्न, यानी अब्राहम लिंकन का वो बात याद करिए, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यानी एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई है, जनता के हित के लिए बनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में यानी जनता के लिए राजा होगा। यहाँ पर यहाँ राजा कोई व्यक्ति नहीं होगा, राजा जनता होगा, जिसे अब जाकर के लग रहा है कि हाँ राजा जनता होगा। इसका मतलब स्वतंत्रताएं, तमाम स्वतंत्रताएं मिलते हुए, और सारी स्वतंत्रताएं हमारे पास है, साथ में राजा भी हम ही हैं। यानी हम जो इसे तय करेंगे वो राजा राजगद्दी पे बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। तो ऐसी स्थिति पर, और जो राजगद्दी पे बैठेगा वो हमारा सेवक होगा, हमारा मालिक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था दी कि हम डेमोक्रेटिक पैटर्न की गवर्नमेंट को अडॉप्ट करें, और जनता वहां पे राजा हो, जनता वहां पर सब कुछ हो, मालिक हो, न कि राजा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका हो। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग खुद को राजा समझने लगे हैं और जनता को प्रजा समझने लगे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो राज व्यवस्था में हो सकता है, राजशाही व्यवस्था में हो सकता है, किंगडम में हो सकता है, बट इन डेमोक्रेटिक पैटर्न दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई दे मस्ट हैव टू चेंज देयर माइंडसेट। इफ दे विल नॉट चेंज देयर माइंडसेट, अल्टीमेटली द पीपल दे विल चेंज द माइंडसेट। आप देखिए सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं, आप वोट देके परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, आपको लगता है आप मालिक बटे, मैं आपको हटा देता हूं, कल के दिन आप फिर हमारे नौकर हो जाएंगे, हाथ जोड़ते फिरेंगे मेरे सामने। तो देश के संविधान की खूबसूरती देखिए कि पूर्ण स्वराज देने की बात, कि जो देश की आजादी की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज में चाहिए, हमें कहीं से डोमिनेंस नहीं चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वही पूर्ण स्वराज देश के संविधान के प्रावधानों में भी देखने को
मिलता है। तो इसलिए कहीं न कहीं से स्वराज का कॉन्सेप्ट भी पूर्ण स्वराज में होता हुआ दिखता है। अंतिम में देखिए, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशन बिल्डिंग, ये जो है संविधान का वैल्यू है कि ये संविधान में पूर्ण स्वराज के लिए जरूरी है कि अगर देश इसकी सॉवरेनिटी, देश की सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी है, इस देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बना रहे। और कोई भी संघ अगर है, फेडरल है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी नहीं होगी तो वो संघ नहीं बना सकता। यानी आप जो कहते हैं छात्र संघ, तो छात्र संघ में जब तक यूनिटी और इंटीग्रिटी ना, छात्र एकता जिंदाबाद करते हैं, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी ना हो तो छात्र संघ का कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। तो भारत संघ भी अगर बने रहना है तो इसके लिए जरूरी है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी हो, नेशन बिल्डिंग हो। इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण स्वराज के दायरे में हमें अधिकार मिला, और अधिकार मिलने के साथ साथ हम एक डेमोक्रेटिक पैटर्न की गवर्नमेंट पे गए संविधान के अंतर्गत। और यानी इसमें राजा सर, जनता होगी, आम जनता होगी, और उस डेमोक्रेटिक पैटर्न को बनाए रखने के लिए और उस जनता की एकता को बनाए रखने के लिए, उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं से, जिससे कि नेशन बिल्डिंग हो, सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो, उसके लिए कहीं न कहीं ये व्यवस्था भी संविधान के अंतर्गत की गई। अब आइए रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन उठता है कि क्या देश जो स्वराज है, वह स्वराज लोगों को स्वतंत्रताएं दे, सब कुछ दे, तो क्या वो स्वराज अपने आप में कंप्लीट है? नहीं, कंप्लीट नहीं है। तो क्या हो? रूल ऑफ लॉ। हम लोगों ने देखा आर्टिकल 14 में देखा, वो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉज, दैट टॉक्स अबाउट द रूल ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन उठता है कि कोई भी इशू हो तो क्या माइट इज राइट चले, जिसकी लाठी उसकी भैंस चले, या कानून का शासन चले? यानी कोई व्यक्ति किसी से ऊपर नहीं है, सभी कानून के नीचे हैं, विद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर एल्स। तो ऑल आर अंडर द सब्जेक्शन ऑफ द लॉ। इसीलिए कानून के अंतर्गत कानून को सबसे ऊपर रखा गया, न किसी राजा को रखा गया, न रानी को रखा गया, न किसी व्यक्ति को रखा गया। तो स्वराज के लिए जरूरी है कि जो कानून हो सब पे बराबर से लागू हो, सबके लिए हो। और इसीलिए कहीं न कहीं से सबको रूल ऑफ लॉ के दायरे के अंतर्गत लाया गया। और उसमें लीगल सिस्टम में इसीलिए लॉ का, अगर किसी के पास मान लीजिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फ्री लीगल एड की बात की गई है। लॉ का अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा किसी को और वो कैपेबल एनफ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फ्री लीगल एड की बात की गई कि नहीं, कानून की सहायता आपके लिए भी है, और आप फ्री लीगल एड के तहत आपको सरकार ये सुविधा मुहैया करा रही है, जिससे कि आप अपने पक्ष को भी न्यायालय के सामने रख सकें। तो इसीलिए कहीं न कहीं से जिस प्रकार की इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है, कि क्षमता नहीं है पैसा पे कर पाने के कारण, किसी कारणों के कारण अगर कोर्ट में जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप देखिए कि इतनी व्यवस्था बनी कि करते करते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तक हम पहुंच गए कि आप एक पोस्ट कार्ड पे लेटर लिख दीजिए और कोर्ट उसको उसकी सुनवाई करने लगी। यानी लॉ केयर्स एवरीवन, कानून सबको, वो सबका ध्यान रखेगी, सबको केयर करेगी, सबके राइट्स का प्रोटेक्शन करेगी, सबकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करेगी। तो तब जाकर के स्वराज की कल्पना अपने आप में पूर्ण हो पाएगी। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि कहीं न कहीं से पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा स्वराज, और चौथा था अंत्योदय, और पांचवा था सर्वोदय। तो ये समझने की चीज है, अंत्योदय और सर्वोदय। अंत्योदय क्या है? आप एक, जैसे टीचर होता है, क्लास में जब वो पढ़ाता है, डिस्कस करता है, तो उसके दिमाग में बैठा रहता है कि जो सबसे कमजोर बच्चा होगा, हमें उस तक अपनी बात पहुंचानी है। अगर उस कमजोर बच्चे का भी हमने आपको डिस्कस करके समझा लिया, तो इसका मतलब बाकी का ऑटोमेटिकली बाकी बच्चे समझ गए सब्जेक्ट को। यानी यही कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी था। गांधी जी की फिलॉसफी थी कि जो सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अंतिम पायदान जिसे कहते हैं, अगर हम उसका उदय कर दें, यानी उसका उत्थान कर दें, उसको हम अपलिफ्ट कर दें, सो अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, once it has been done, then it is obvious then other sections of the society they will automatically be uplifted, वो अपने आप अपलिफ्ट कर हो जाएंगे। तो अपलिफ्टमेंट की बात जब आई कि ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कि सोशलिज्म के लिए जरूरी है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करें, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल जस्टिस देना है, तो देन यू विल हैव टू मेक एन अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। और ये इसके लिए जरूरी है कि जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका अपलिफ्टमेंट हो। और यही कारण है कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाई जाती है, जिसे हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है उन लोगों का जो लोग सोसाइटी में दबे और कुचले हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो,
जिस रूप में भी हो, चाहे वो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लोग हो, जो भी कमजोर लोग हैं, उन्हें भी किसी न किसी रूप में उन्हें अपलिफ्ट करके ऊपर लाया जाए, जिससे कि मेन नेशनल लाइफ के मेन स्ट्रीम में वो भी शामिल हो सके और वो भी देश को कंट्रीब्यूट कर सके। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई कंपनी आती है इस देश में और कंपनी ने देख लिया कि 20 करोड़ की का पॉपुलेशन जो है, ये इसकी परचेसिंग कैपेसिटी ज्यादा है, यही केवल हमारा कंज्यूमर है। लेकिन अगर बाकी जो पॉपुलेशन है वो इतना वीक है कि उसकी कंज्यूमेबल आइटम्स को खरीद ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसे हम धीरे धीरे करके अपलिफ्ट करते करते उसकी कंज्यूमेबल आइटम खरीदने की परचेसिंग कैपेसिटी को हम बढ़ा दें और यानी उन्हें अपलिफ्ट कर दें इस कैपेसिटी में, तो नेचुरली जो ग्रोथ है, जो बिजनेस हमारे यहाँ है, वो और ज्यादा फलेगा फूलेगा, वो और लोगों को रोजगार देगा। तो देखिए छोटा सा उदाहरण कि जो कमजोर लोग हैं उन्हें हमने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अपलिफ्ट किया और उसका एडवांटेज क्या मिला कि तमाम लोग अब जब अपलिफ्ट करेंगे तो नेचुरली फैक्ट्रीज और लगेंगी, कंपनियां और आएंगी, तो तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कहीं ना कहीं से जो छोटे तबके को हम अपलिफ्ट करते हैं तो वो उससे कहीं ना कहीं से और भी तबके के लोगों को फायदा मिलता है, उनका अपलिफ्टमेंट ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि छोटा तबका तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको थोड़ा बहुत रोजगार मेहनत का दे दिया, उसने कमा लिया, 4 पैसे का सामान खरीदने लगा वो। लेकिन अब वो 4 पैसे का सामान जब खरीदने लगा तो उससे जॉब की जरूरत हुई, तो जॉब किसको मिला? जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ऊपर के स्टेटा के लोग हैं। तो यह व्यवस्था कहीं न कहीं भारत के संविधान में किया गया और यही अपलिफ्टमेंट जो है कहीं न कहीं से जब कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया तो बहुत रूप में किया गया। आप लिखे पढ़ाई हुई चीजों को पढ़ते रहिए, मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। तो कहिएगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो अंतिम में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे उठा करके उसको कैसे उठाया जाए और उस अंतिम व्यक्ति के सहारे कैसे हम सबका उदय करें, यानी एक अंत्योदय, अंतिम बैठा पादान बैठे व्यक्ति का उदय करें, उसका उत्थान करें, उसको अपलिफ्ट करें, तो ऑटोमेटिकली सर्वोदय सभी लोगों का अपने आप उदय हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भारत के संविधान में मिलाया गया। और देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, इसीलिए आर्टिकल 44 में इसलिए की गई क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं न कहीं से जो विमेन है, आप देखेंगे उसका एडॉप्शन और सब मैरिज यही सब मैटर्स में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं से देखेंगे कि उसमें जो विमेन है, विमेन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, तो विमेन और अल्टीमेटली विमेन होती हैं। विमेन के साथ अगर कोई अत्याचार हो तो किसी भी रिलीजन की हो, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। विमेन के साथ अत्याचार का मतलब होता है विमेन के साथ अत्याचार हो रहा है, एक वीकर सेक्शन के साथ अत्याचार हो रहा है। और यही कारण है कि एक डायरेक्शन के रूप में रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब सोसाइटी थोड़ी मैच्योर हो जाए और देश हमारा परिपक्व हो जाए और देश हमारा सक्षम हो जाए, तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लाना है जिससे कि एक ही कानून के दायरे में सारी महिलाएं आ सके। तो ये व्यवस्था किया गया और साथ साथ ये व्यवस्था किया गया कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। कहते हैं नॉलेज इज पावर, अगर नॉलेज पावर है तो बच्चे जो है अगर जिनके पास क्षमता नहीं है एजुकेशन लेने की, वो कैसे पावरलेस रह सकते हैं? तो उस पावरलेस न रहे इसके लिए व्यवस्था की गई संविधान के अंतर्गत कि 14 साल तक के बच्चों के लिए, और अल्टीमेटली आर्टिकल 21A में इसको लाया गया कि अमेंड करके, तो 14 साल के बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई कि नहीं, उन्हें एजुकेशन कंपल्सरली देना चाहिए जिससे कि वो एजुकेशन के थ्रू नॉलेज गेन कर सके, पावरफुल वो भी हो सके। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं से सबका उदय हो और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे करके अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति ने अंत्योदय से सर्वोदय का रास्ता पकड़ा जाए। भारत के संविधान में गांधी जी की ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया ये समझने की जरूरत है। सोशल अपलिफ्टमेंट की बात भी की गई, एडवांसमेंट ऑफ SC ST सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन की बात की गई, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। तो सोशल अपलिफ्टमेंट की बात भी की गई जिससे कि सोसाइटी का हर वर्ग आगे निकल करके आए और उस सबका जो है सबका जो है उत्थान हो सके। तो इस तरह से करके सर्वोदय अंत्योदय से सर्वोदय की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए जरा गांधी की फिलॉसफी, आज गांधी को कहते हैं, हरिओम पवार जी बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी कि गांधी के सपनों का भारत कातिल है, हत्यारा है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो गांधी का जो सपना था वो आपके संविधान में सपना है, ये सपना को पिरोया गया है। मैं आशा करता हूं कि इन सपने को पिरोया गया संवैधानिक प्रावधानों में उन कोर वैल्यूज को गांधी के रूप में आप याद रखिए और उसका आचरण करिए। और जब तक गांधी के रूप में आप याद नहीं करेंगे, आचरण नहीं करेंगे, पाएंगे नहीं आप, तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल होगा।
आप देखें सरकार की पॉलिसी या संवैधानिक पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, लागू करने के लिए कैसे पंचायती राज की व्यवस्था की गई, जिससे कि अंतिम पायदान, जब हम कहते हैं अंत्योदय कहते हैं, तो अंत्योदय का मतलब किसी व्यक्ति, केवल अंतिम पायदान बैठे हुआ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़ा कोई क्षेत्र भी हो सकता है, भारत का कोई भूभाग भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया बहुत दिन तक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो उस एरिया को भी डेवलप करना है। आप शरीर के किसी एक अंग को पैरालाइज्ड रख करके पूरे शरीर से आप पूरा काम नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में यही देश के संविधान का भी सोच था, पंचायती राज की व्यवस्था की गई, जिससे कि सरकार की जो नीतियां हैं वह नीतियां बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच सके। संविधानिक जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत मूल्य हैं, वो निचले स्तर तक पहुंच सके, जिससे कि सारे लोगों को लाभ संविधान के प्रावधान का मिल सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज और आधुनिक भारत में प्रवेश कराया, इस रूप में हम कह सकते हैं। तो इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि भाई आज के पावन दिवस पर मिलकर, और एक बात और बताएं, सारे अधिकार भले रख लिए हो, जब तक मूल कर्तव्य जो है आपके कर्तव्य हैं हम उसे नहीं करते तो इन अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। संविधान बिल्कुल बिल्कुल बेकार पड़ा रहेगा। तो हमें कर्तव्यों को भी समझना होगा। तो कुल मिला जुला करके आज का जो दिन है, उस दिन पर अगर मिलकर हम सब भारतीय मूल्यों और महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से ओतप्रोत इस भारतीय संविधान के उच्च मानदंडों को का सम्मान अगर करें और पालन करने की प्रतिज्ञा करें, तो यह देश संविधान निर्माताओं के प्रति अपनी ये जो है आज का जो दिन है वो संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और राष्ट्र के उन्नयन का मार्ग भी प्रशस्त करेगी, इसमें सहायक सिद्ध होगा। और इसलिए मैं फिर से आप सभी को आज के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अब मैं चाहूंगा प्रियांशु मैम, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स। आज इस संविधान दिवस, मैं चाहूंगा अगर कोई बीच में बोलना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि हमारे ज्यादातर छात्र ही रहे हैं, मैं चाहूंगा कि बोले, वो भी मैं उनको सुनना चाहूंगा। जी सर, है ना? तो अगर बोलना चाहे तो बोले, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आप में से कोई बोलना चाहता है? अक्षय जी इनवाइट करिए, कोई बोलना चाहे तो जरूर बोले, हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी स्टूडेंट सर से अगर क्वेश्चन करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज आगे आए, अपना माइक ऑन कर लें और सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं आप अपना, अगर कुछ अपना भिन्न मत रखना चाहते हैं, अलग व्यू रखना चाहते हैं, you can throw a lot of bomb to me in terms of question. You are free to ask me question, and if once you are interested to make any other comment other than what I have said, yes, you have all right to make comment, no problem at all. इसीलिए तो आज का संविधान दिन, अगर इतनी भी स्वतंत्रता आपको नहीं है तो फिर इस संविधान दिवस का मतलब क्या रह गया, है ना? सर, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए हमारे पास प्रोविजंस हैं आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 में, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हमारे पास प्रोविजंस नहीं है। सर ऐसा क्यों है और क्या कभी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने धर्म की बात करी तो वहां पर देखिए कि भारत में जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, कहीं न कहीं से वो ड्यूटी बाउंड है। धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। क्लास में आप लोग सुने होंगे इस चीज को। तो क्या धारण करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आप शुद्ध रहें, ये आपकी ड्यूटी है। यानी अगर आप मन, अब देखिए इसमें भी गांधी जी हैं। आप लोग सोचेंगे कैसे? बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, मन से, ठीक है, बुरा मत सोचो, ठीक है, बुरा मत कहो, वाचा कर्मणा, ठीक है, कर्म से बुरा मत करो। तो ये तीनों चीज आप गांधी जी को मिटा ही नहीं सकते। लोग बहुत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिटा सकते। देश के संविधान में उन्हें दिखाया आपको कैसे गांधी जी पूरा पिरोए गए हैं, गांधी जी के सिद्धांत को पिरोया गया है। तो गांधीयन कॉन्सेप्ट को हम देखें, ये जो है कहीं ना कहीं से मॉरल फोर्स आपके ऊपर अडॉप्ट करता है, इम्पोज करता है। आप पूरी दुनिया में जाए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लाया, यूडीएचआर।
वो अडॉप्ट हुआ, लेकिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लाया गया, ये रेजोल्यूशन लाया गया था। अनफॉर्चुनेटली ये रेजोल्यूशन नहीं पास हो सका और उसे लागू नहीं कराया जा सका, क्योंकि उनका कहना था कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे देश, ताकतवर देश दूसरे देश में घुस सकते हैं और उसके हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसलिए नहीं आया। लेकिन आप हमारे देश का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म को ड्यूटी बाउंड के रूप में रखा गया, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, जीवों पर दया करो, ड्यूटी बनाया गया हमारे ऊपर। तो इसीलिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि देश की जो जनता है, वो देश की जनता कहीं ना कहीं से उसकी स्थिति ऐसी है कि वह अभी बहुत मैच्योर्ड नहीं है, बहुत परिपक्व नहीं है। हम आप परिपक्व नहीं, क्लास में कितनी बार कह चुके हैं, जब वोट डालने जाते हैं तो हम देखते हैं हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे धर्म का है कि नहीं, हमारे क्षेत्र का नहीं। वी आर हाईली मैच्योर्ड डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिग्रीज। हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, बावजूद उसके डिग्री का हम दुरुपयोग करते हैं और देखिए हम जाति धर्म के आधार पर वोट कर देते हैं। तो हम लोग भी अभी बहुत इमेच्योर हैं। तो इस इमेच्योर जनता के ऊपर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सरकार उस पर फोर्स करने लगेगी और कहीं अगर सरकार तानाशाह आ गई तो दुरुपयोग करेगी। इसीलिए आपके मॉरल फोर्स पर छोड़ दिया गया कि इस ड्यूटीज को आप करेंगे, आपको अच्छा माना गया, इसमें बुराई क्या है, आपको अच्छा कहा जाएगा, आप बहुत अच्छे हैं, इन ड्यूटीज को हम मानेंगे, आपको दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं, लागू कराने की कोई जरूरत नहीं। तो हमें आपको अगर ड्यूटी बाउंड होना चाहिए, अगर हम आप ड्यूटी बाउंड नहीं है तो समझिए कि हम आप संवैधानिक दायित्वों से भाग रहे हैं। तो इस संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने का श्रेय का दायित्व हमारा है पहले, और इसको हम कानून से इन्फोर्स करा कर, सब कुछ कानून से थोड़ी इन्फोर्स कराया जाता है, कुछ आदत वश भी तो हम डालें, ठीक है। और हमें आदत अगर कानून का पालन करने का नहीं होगा तो सारा काम कानून आपके सामने खाना आ जाए और पूछा जाए कि आप खाना कोई उठा कर दे तभी खाएंगे, फिर कब तक कोई देगा आपको, तो भूखा रह जाएंगे आप। इसलिए इस भूख को मिटाने के लिए आपको स्वयं खाना होगा। जैसे मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि आपको खाना अगर खाना है तो आप मेरा इंतजार मत करिए, भूख का इंतजार करिए। जब भूख लगे तब खाइए, पति का आने का इंतजार मत करिए, पति आएगा तभी खाएंगे ना, भूख का इंतजार करिए। तो इसीलिए जहां पर आपका दायित्व है उसे आप निभाइए, जहां पर कानून का दायित्व है कानून निभाएगा। हर चीज कानून या कोर्ट से के थ्रू पालन नहीं हो सकता। और कुछ सर एक क्वेश्चन सर मेरा भी छोटा सा। बिल्कुल सर, बस ये जानकारी चाह रहा था मैं, आपने तानाशाही की बात कही सर, अगर कहीं हिंदुस्तान में मान लिया जाए कभी तानाशाही आती है सर, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होगा सर, कोई कर सकता है सर? हाँ, अच्छा सवाल है। पहली बात तो एक बात मानिए कि मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। ये जो संविधान है ये काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। अगर इस अक्षर का पालन हम ही नहीं, जिसको दायित्व दिया गया, द पर्सन हु हैज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू implement the constitution properly and honestly, and that person is doing something else, ठीक है ना, that person is not working according to the provisions of the constitution, then what will be the consequence? Of course ultimately फिर जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। फिर वहां पर संविधान की रक्षा करने के दायित्व केवल सरकारों का नहीं रह जाता, हमारा आपका सरकार है, लोकतंत्र में हमारा आपका सरकार है, और हमारी आपकी अगर सरकार है फिर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, उसे उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हमारी होगी। जॉन लॉक यही कहते हैं, मैंने जॉन लॉक को बीच में लाया। जॉन लॉक कहते हैं कि अगर लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ अगर राजा करता है तो उसे उखाड़ फेंकने का अधिकार आपको पूरा होता है। तो इस राजा अगर तानाशाह हो जाए तो जॉन लॉक को याद करिएगा, रूसो को याद करिएगा, रूसो भी कहता है ये बात, उखाड़ फेंकेगा इस राजा को, यानी सड़क पर आपको उतर करके इसे उखाड़ फेंकना होगा। जब अंग्रेज जिसके पास इतनी ताकत थी वो हमारे शारीरिक शक्ति, मानव बल से भाग गई, तो वो इनकी क्या ताकत है, तो अपने आप सरेंडर कर जाएंगे। तो निश्चित रहिए संविधान का पालन कराना केवल सरकारों का काम नहीं है, संविधान का पालन कराना सरकार हम हैं, लोकतंत्र में हमारी पहली जिम्मेदारी है, तो हमें सड़क पर उतरना होगा, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो भाई अपने कौशिक जी को अब अपना ओपन कर लीजिए। कौशिक जी, ये हमारे थैंक यू सर, छात्र भी रहे हैं और बड़े प्यारे छात्र रहे हैं। तो आज मैं 4 बजे लेक्चर रखा हुआ था और इनका आया कि सर आप लेक्चर मैं चाहता हूँ कराऊं। हमने आप क्लब करिए, अपने पर आप ही प्रोग्राम को बनाइए और क्लब करिए, हमारे स्टूडेंट्स भी रहेंगे और आपके भी रहेंगे, और दोनों के स्टूडेंट्स रहेंगे और दोनों एंजॉय करेंगे। मेरे लिए तो जितना ऑडियंस ज्यादा है, गैदरिंग ज्यादा है, नेचुरली उतना हम एंजॉय करेंगे।
तो थैंक यू सो मच फॉर कौशिक जी ऑल्सो, ही हैज गिवन मी सच एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो एंजॉय करता हूँ इस तरह के मौके को, और अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे याद किया और मुझे कुछ अपनी बातें कहने का मौका दिया। धन्यवाद इसके लिए। Priyanshu ma'am, please, vote of thanks ma'am. आज इस संविधान दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशनल पंडित डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय सर का सानिध्य मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। उनका इस वेबिनार के लिए समय निकालने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। सर के शब्दों का जो चयन होता है डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे विषय को समझाते हैं, जिससे कि किसी लेमैन को भी सब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सर के साथ हमेशा ही समय की कमी होती है, लेकिन ज्ञान की नहीं। वे गागर में सागर भरने में कुशल हैं और बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं। उपाध्याय सर का गहन अध्ययन दर्शाता है कि उनका परिचय भारतीय संविधान के हर शब्द से है। वे पढ़ाते समय विद्यार्थियों को उसी समय में ले जाते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसके अपार्ट वे आज के परिप्रेक्ष्य में भी संविधान की महत्ता को बखूबी समझाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आता तो ऐसा लॉ स्टूडेंट पूरे जीवन भर कॉन्स्टिट्यूशनली पैरालाइज्ड रह जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर गुरुवर उपाध्याय सर हो तो ऐसा संभव ही नहीं है। और इसके अपार्ट मैं ये कहना चाहूँगी ही इज हैविंग गुड कमांड ओवर जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जूरिस्प्रूडेंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मिंगल करते हैं। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर का क्लास लेती हूँ मैं। और इसके अपार्ट मैं कौशिक सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय तरुण कौशिक सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कौशिक लॉ क्लासेस। ही इज अ रिसर्च स्कॉलर इन मेरठ कॉलेज मेरठ। He is also a knowledgeable person having great command over his subjects. हम तरुण सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हम सभी को कौशिक लॉ क्लासेस के माध्यम से ज्ञान मंच उपलब्ध कराया और जहां हमने वैचारिक आदान प्रदान किया और ज्ञानार्जन किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वैचारिक संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करने के लिए। अंत में मैं प्रियांशु जी को धन्यवाद देता हूँ। कितना खूबसूरत शब्दों का चयन कैसे कर लिया इन्होंने, मैं तो सोचता रह जाऊंगा अगर मुझे किसी के लिए ऐसा कहना हो तो। Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, thank you.